Good morning, everyone. Today we will discuss the traffic control devices. Okay, as we know that transportation system, it is what it is. The components are different. It is a combination of different components. Okay, we learn what are those components. Those are road users. Okay, vehicle, way, and traffic control system. Okay, traffic control devices. We have learned about the road user and vehicular characteristics. Okay, about the way, we have already learned the geometric design of highway as well as the pavement design of highway. Okay, now comes your fourth component and the most important component, because of which our whole transportation system will work smoothly. Okay, we have to control this transportation system with the different devices. Okay, now we will learn about that only. That is known as traffic control devices. Now tell me, what are the, give me some example of traffic control devices, especially in highway. I'm not talking about the other modes. Okay, I'm only considering the roadway. Now tell me, what are the give few examples of traffic control devices in with the help of which we will smoothly manage the transportation system to work smoothly. Give me some example. Anyone? Zebra crossing. Okay, zebra crossing. Others? Zebra crossing, then anyone? Ma'am, traffic Traffic signal. signal. Traffic signal, very good. And traffic signal, zebra crossing, and only these two are the traffic control. Speed breaker. Speed breaker, okay. And when you travel from a road, when you travel on a roadway, okay, don't you see any signboard and like that beside the roadway on Yes, the ma'am. edge? Yes, that is also an example of traffic control device only. Okay, with the help of those signboard, what they are they are trying to help you. Okay, they are trying to guide you. They will tell you, okay, this much is the speed limit, so you should not cross that speed limit. If there is one speed limit signboard is there, okay, if there is one stop signboard is there, means what, there will you need to stop. Okay, if there is one school ahead signboard is there, that means what, please slow down your vehicles because you are reaching to the zone where there will be a school. That means वहाँ पे क्या हो जाएगा, in that case, in that region, students will cross the road, so you have to control your speed, right? So these are your what, control devices. So if we classify these control devices, if we broadly classify these control devices, then there are mainly three types of control devices. Okay, one is zebra crossing. All this comes under your markings. Okay, that is called road marking. So road marking is one type of control device, traffic control device. The signboard and all are what, these are the road sign, traffic signs. That is one kind of control device. Okay, and signals and all, that is your another kind of traffic control device. Okay, so there are mainly three types of traffic control devices that you will learn. Okay, what are those? Road signs, road markings, and your traffic signals. Okay, so these are the three. Now we will learn about those things only in details. Okay, so in this lecture, this first lecture is about your road signs and marking. You have seen so many road signs, so many road markings, uh, but you don't know, okay, in which classification or in which actually road sign doesn't mean only that stop sign is one kind of road sign. Okay, your school ahead sign is one kind of road sign, but there are some broad classification under which all these types of signboards will come. Now we will learn about that only. Okay, what are the different classification of the road signs, what are their purpose, okay, what is the objective of those road signs and all, we will learn
And markings also, there are also several types of marking. Zebra crossing comes under one type of marking. Okay, apart from zebra crossing, there will be other kind of markings also in the roadway. Okay, when you will see the slide, you will understand, oh, these are also the markings. Okay, then we can say that all this, there are different classification of road signs and markings also that we will learn. Okay, see why we need, why it is why we are using all this signboard and signals and all, because to control our traffic, so that there will be basically what, to prevent accidents, to prevent delay. Okay, you're traveling from one point to another. What is the purpose of transportation? To carry vehicles and to carry goods and people from one point to another. That is the main purpose. Okay, now how you will carry? Okay, whether it will take very long time or it will take very less time. Time is very precious for everyone. Okay, that's why what we have to do, we will design our traffic system such a way that that time taken to reach from one point to another, it should be minimum. That means there should be minimum delay. If more efficient is your traffic control system, all these delays will be less. That means your time, value of time is very much important. Okay, so your loss of time will be less. Okay, that is one important objective of traffic system, transportation control devices and all. Another important is what, your life. Okay, your transportation system should not be such that there will it should be smooth. Okay, it should be safe, it should be smooth, comfortable and safe. Okay, for that only, for that reason only, this control devices has been allotted. Okay, signboards, if we see some sign, what happens, we will get some knowledge. अच्छा, in थोड़ी देर के बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ स्कूल अहेड, सो आई नीड टू स्लो डाउन. मतलब क्या हो जाएगा, इफ वी डोंट हैव सच साइन बोर्ड एंड सडनली तुम्हारे उस रीजन में स्कूल जोन आ जाएगा, तो क्या होगा, सपोज यू आर मूविंग एट अ हायर स्पीड, तो वहां से एक बच्चा क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, देयर में बी चांस ऑफ एक्सीडेंट. सो दैट इज नॉट द सेफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. सो यही सब प्रिवेंट करने के लिए, सो दैट ये ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम स्मूथली वर्क करने के लिए, ओके, एज वेल एज इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, ये सब कोऑर्डिनेशन इट शुड बी आल्सो वेरी गुड. ठीक है, फॉर दैट रीजन ओनली वी आर यूजिंग डिफरेंट योर sorry. So these are the main objectives of your traffic control devices. Okay, if there will be no signal in this intersection, okay, if there will be no signboard or no markings, then what happens, all this will be haphazard. Okay, there will be many conflicting points. I will show you what do you understand by the conflicting point in the next lecture. Okay, more the conflicting point at intersection, more will be the chances of accidents. Okay, more will be the chances of crash and all. Okay, so in order to prevent all these things, we have to provide markings. Okay, we have to provide some signboards, also signals. Okay, so these are the main objective of our traffic control devices. Okay, now see these, all this, where what you can see in this case, in this video, what you can see, हाँ, what kind of traffic? गाड़ी तो ये तो व्हीकल है. आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम या ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस. साइन बोर्ड है. यस, देखो दीज आर द साइन बोर्ड्स. यहाँ पे लिमिट दे दिया है. ओके, सो दीज आर व्हाट, दे आर गाइडिंग अस, राइट. गाइडिंग अस मतलब क्या है, हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है या हमको डायरेक्शन बता रहा है. अच्छा, कितना डिस्टेंस के बाद तुम्हारा वो पर्टिकुलर एरिया आएगा. ओके, कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा उस जगह पे जाने के लिए. सो these are also what, they are also, that is objective of this signboard, to show you the direction. इसीलिए इसको नाम क्या है, directional signboard. और they are providing some information also, so they are also known as informatory signboard. ये एक kind of classification हो गया ना. Apart from that, there are other two types also. Okay, we will discuss about it. अब ये देखो, ये इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, बेसिकली इन द इंटरसेक्शन
See, these are the zebra crossings. Okay, what are this zebra crossing? These are the markings. ये markings अगर provide कर रहे हैं मतलब क्या है, मतलब कि people can use this road. Okay, this what ये वाला जो stretch है ये use करके they can cross the segment, right, road segment. एंड यहाँ पे देखो स्टॉप लाइन है, मतलब कि इसको गाड़ी को यहीं तक ही आके स्टॉप करना है. इफ सी दिस इज द स्टॉप लाइन. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है तुमको, सिग्नल भी दिखाई दे रहा है. सो ऑल दिस आर व्हाट, सिग्नल की वजह से देखो दिस व्हीकल्स आर इन स्टॉप कंडीशन, मतलब इन लोग का रेड सिग्नल है, एंड दिस व्हीकल्स आर मूविंग, मतलब ये ग्रीन सिग्नल है, राइट. तो अगर ये सिग्नल्स नहीं होता, कोई साइन बोर्ड भी नहीं होता, देन क्या होता है, दे आर ऑल्सो कमिंग, दे आर ऑल्सो कमिंग, देन there will be chance of collision मतलब crash, right, 90 डिग्री का crash हो सकता है, conflict हो सकता है. So in order to prevent all this thing only traffic control devices has been provided. Okay, अब देखो यहाँ से तुम जा रहे हो, you can see there are different sign boards. Okay, ये वाला साइन बोर्ड है, ठीक है, अब ये वाला साइन बोर्ड है. Now see their shapes, their size all are different. Okay, देखो इसका ट्रायंगल है, वेरस इन लोग का क्या है, सर्कुलर है, ठीक है. अब ये साइन, दोनों साइन बोर्ड दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप. ये जो क्रॉस यहाँ पे क्या दिया है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आने वाला है. ओके, नाउ व्हाट काइंड ऑफ साइन दे आर गिविंग. ये साइन से तुमको क्या पता चल रहा है कि सामने एक जेब्रा क्रॉसिंग है या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, तुमको थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा, राइट. ये सामने एक स्पीड ब्रेकर है, मतलब क्या है, इन फ्यूचर क्या आने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है या क्या हैजर्डस सिचुएशन आने वाला है, उसके बारे में तुमको वार्निंग दे रहा है. ओके, दे आर मेकिंग दिस साइन बोर्ड्स आर मेकिंग कॉशियस, तुमको कॉशन कर रहा है, राइट. पहले से बोल रहा है कि थोड़ा थम जाओ, राइट, मतलब सो दीज आर नोन एज द कॉशनरी और वार्निंग साइन बोर्ड. ओके, एंड दीज आर व्हाट, 60 के ऊपर तुमको जाना नहीं है या 50 के ऊपर तुमको जाना नहीं है. दैट स्पीड लिमिट, दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो दैट साइन बोर्ड, दैट इज मैंडेटरी. ओके, और वी कैन से इट इज रेगुलेटरी, तुमको रेगुलेट कर रहा है, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट साइन बोर्ड. अब इसके अंदर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशंस है, मेनली 3 क्लासिफिकेशंस आर देयर, यू विल लर्न अबाउट दिस. ओके, अब देखो यहाँ पे सिग्नल का भी ये सबका अपना अपना सिंबलाइजेशन है. ग्रीन सबसे ऊपर में रहेगा, रेड, राइट. ग्रीन का मतलब है गो, येलो या एम्बर जो रहता है उसका मतलब सोचो, कैन यू क्रॉस द रोड, उतना टाइम है तुम्हारे पास, देन ओनली यू विल एंटर द इंटरसेक्शन. और इफ यू कैन नॉट क्रॉस द रोड, जिससे तुम्हारा रेड सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन से अब रेड सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा, विद इन दैट टाइम लिमिट एक गैप रहेगा, उस टाइम लिमिट में तुम क्रॉस कर पाओगे कि नहीं. उस टाइम के अंदर कैन यू क्रॉस द रोड और नॉट, यही सोचने के लिए वो 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम दिया गया है. ओके, डायलेमा जोन उसको बोलते हैं, मतलब कि सपोज यू आर एंटरिंग एन इंटरसेक्शन, ग्रीन सिग्नल था, दूर से देखा था ग्रीन सिग्नल था, राइट. यू आर एंटरिंग नाउ इंटरसेक्शन, नाउ सडनली अब ये ग्रीन से क्या हो जाएगा, येलो एम्बर ब्लिंक करना लगेगा, राइट, करने लगेगा. अब तुमको देखना है कि ये जितना सेकेंड के लिए ब्लिंक करेगा, सपोज 3 to 4 सेकेंड के लिए ब्लिंक करेगा, तो उतने टाइम में तुम जिस स्पीड से आ रहे थे उसी स्पीड से अगर एंटर करोगे इंटरसेक्शन को, सो कैन यू क्रॉस द इंटरसेक्शन बिफोर ये दिस रेड सिग्नल स्टार्ट्स. नहीं तो वहां से दूसरा रोड से धक्का तुमको दे देगा, राइट. दे विल स्टार्ट टू मूव एंड क्रैश हो जाएगा. वो टाइम तुम्हारे पास है कि तुम उसको ट्रैवल मतलब क्रॉस कर सको इंटरसेक्शन को, या इफ यू डोंट हैव दैट इनफ दैट मच टाइम, देन यू हैव टू स्टॉप डाउन. मतलब तुमको अब इन लोग का जब रेड खत्म होकर दूसरा ग्रीन आएगा तब यू कैन क्रॉस द इंटरसेक्शन. दैट मीन्स व्हाट, ये टाइम दिया है फॉर थिंकिंग, ठीक है. तुम क्रॉस कर पाओगे तो जल्दी जल्दी करो, अगर एंटर कर दिए हो इंटरसेक्शन तो जल्दी जल्दी इसको निकाल, इससे निकलो, राइट, क्योंकि रेड सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे रोडवे में. अगर तुमको मतलब बहुत दूर से आ रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इंटरसेक्शन में जाते जाते, तुमको लग रहा है कि इंटरसेक्शन में पहुंचते ही रेड सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा, देन यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल. सो दे आर गिविंग यू चांस टू थिंक, जाना है या रुकना है. ओके, देन योर रेड सिग्नल मीन्स यू हैव टू स्टॉप. नाउ कम्स टू द डिटेल. रोड मार्किंग्स क्या है, कैसा टाइप का है, वी विल सी. ओके, सो रोड मार्किंग्स, ये इसके लिए जो कोड मतलब ये जो मार्किंग्स का थिकनेस है, कितना लेंथ होना चाहिए, ठीक है,
everything is decided by IRC 35. Okay, this is the code for road markings. Okay, now क्या क्या यूज करते हैं, पेंट यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स, थर्मोप्लास्टिक पेंट्स, जो जिससे बेसिकली रोड मार्किंग्स का कलर क्या होता है, एनीवन? रोड मार्किंग्स जब भी देखते हो किस कलर में होता है? पहले बोलो, रास्ता किस कलर का होता है मेनली? रोडवे जो पेवमेंट का टॉप सरफेस है उसका कलर क्या होता है, और क्या देखने से क्या लगता है, क्या कलर का है? ग्रे। मैम व्हाइट ही तो हो। नहीं नहीं, पेवमेंट का सरफेस का बात कर रहे हैं हम, ग्रे और ब्लैक, डार्क कलर, राइट? अब डार्क कलर में कौन सा वाला जो ब्राइट दिखेगा, कॉन्ट्रास्टिंग कलर कौन सा है? व्हाइट। व्हाइट। ओके, इसीलिए तुम लोग को देखना मैक्सिमम व्हाइट कलर का ही पेंटिंग से किया जाता है मार्किंग्स। ओके, और कुछ कुछ केस में येलो भी होता है। अब येलो का एक मीनिंग है, ओके, व्हाइट मैक्सिमम होता है, इन जनरल होता है, और कुछ कुछ जगह पर येलो भी तुमको दिखने को मिल जाएगा, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है अगर व्हाइट की जगह पर येलो यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो दिस आर द टाइप्स ऑफ मार्किंग। कभी पता था इतना सारा टाइप्स का होता है? देखो क्या क्या है, मेनली जो है कैरेज वे मार्किंग, मतलब कि जो मार्किंग्स, वॉट एवर टाइप ऑफ द मार्किंग्स विच यू विल सी ऑन द पेवमेंट, ऑन द कैरेज वे, ठीक है? पेवमेंट तो रास्ता, रोडवे तो तुम्हारा सिर्फ कैरेज वे से तो नहीं बनता है, बीच में मीडियन है, साइड में शोल्डर है, कर्व है, फिर शोल्डर है, राइट? सो सिर्फ कैरेज वे में जो मार्किंग है उसको बोलते हैं कैरेज वे मार्किंग, ठीक है? फिर दूसरा क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट मार्किंग, मतलब अपार्ट फ्रॉम कैरेज वे बाकी जो जो भी आसपास में भी, जो एक रास्ता के आसपास में जितना भी ऑब्जेक्ट रहता है, विद इन सर्टेन डिस्टेंस के अंदर में अगर जितना भी ऑब्जेक्ट रहता है उसको भी मार्किंग कर देना पड़ता है, राइट? व्हाइट कलर से पेंट कर देना पड़ता है, राइट? दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट मार्किंग। नाउ विद इन द कैरेज वे मार्किंग दीज आर द टाइप्स। ओके, क्या क्या है? एक है लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग। लॉन्गिट्यूडनल मतलब है कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक किस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा पेंट करते करते हम जाएंगे, मार्किंग्स ड्रॉ करते करते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? कुछ कुछ होता है इंटरसेक्शन में जो है, जैसे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, वो सब क्या है, दोज आर द ट्रांसवर्स मार्किंग। लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते, ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं, या मार्किंग ऑन द इंटरसेक्शंस भी बोल सकते हैं, ओके? ठीक है, मार्किंग्स ऑन द इंटरसेक्शंस, ठीक है? जैसे कि तुम्हारा, अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग्स में क्या क्या आता है? सेंटर लाइन मार्किंग, मतलब जो बीच में देखते हैं तुम लोग, जैसे बीच में जब जाता है ना, सेंट्रल लाइन मार्किंग रहता है, राइट? या ट्रैफिक लेन्स को डिवाइड करने के लिए भी मार्किंग्स जो देते हैं, राइट? नो पासिंग जोन, वार्निंग लाइन्स, बॉर्डर में भी देते हैं, राइट? बॉर्डर में भी रहता है। बस लेन मार्किंग, साइकिल लेन मार्किंग आर द लॉन्गिट्यूडनल। ख्याल करना, जैसे तुम्हारा डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में तो बस भी जाएगा, उसी डायरेक्शन में साइकिल जाएगा, तो उसको सेपरेट कर देने के लिए, उसका अलग सा लेन है, सेपरेट करने के लिए भी हम पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक मार्किंग करेंगे, ओके? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। इंटरसेक्शन में क्या होता है? स्टॉप्स, जैसे हम बोले थे अभी, स्टॉप लाइन है, ठीक है? तुम्हारा पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है, ये सब जो जो है, ऑल दिस आर द इंटरसेक्शन मार्किंग्स, ओके? और जैसे रोड रेल जब आता है, रास्ते के बीच से तुम्हारा रेलवे का लाइन क्रॉस हो जा रहा है, तो वहां पे भी मार्किंग जनरली दिया रहना चाहिए, ठीक है? सो दोज आर दी मार्किंग्स एट हैजर्डस लोकेशंस, ओके? दूसरा है मार्किंग्स फॉर पार्किंग्स। अब ये सिर्फ लाइन को छोड़कर भी क्या हो जाता है, देयर आर सेवरल वर्ड मार्किंग्स आल्सो, मतलब पेवमेंट के ऊपर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? जैसे बस स्टॉप, स्लो, ये सब हम लोग लिख देते हैं, राइट? या एरो मार्किंग देते हैं। सो दीज आर द वर्ड मैसेज मार्किंग। नाउ ये तो हो गया, क्या है, दीज आर द विद इन द कैरेज वे, मतलब कैरेज वे के ऊपर ही हम सब कुछ मार्क कर रहे हैं। अब कैरेज वे को छोड़कर जो अगल बगल जो भी ऑब्जेक्ट है कैरेज वे के आसपास में, ओके, तो दोस्त उसमें भी तो मार्किंग सेपरेट कर देना है, मार्किंग कर देना है, राइट? दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट मार्किंग। जैसे ऑब्जेक्ट्स तुम्हारा विद इन द कैरेज वे जो रहेगा, जैसे मीडियन, कैरेज वे है, कैरेज वे के बीच में तुम्हारा मीडियन है, सो दैट इज व्हाट, मीडियन तो कैरेज वे नहीं है, राइट? वहां पे तो गाड़ी नहीं चल सकता है, लेकिन वहां पे हम लोग क्या देते हैं, प्लांट्स या कुछ भी एक, मतलब उसको बोलते हैं सेपरेशन, ट्रैफिक सेपरेटर जो बोलते हैं, उसमें भी तो हम मार्किंग्स कर देते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट मार्किंग विद इन द कैरेज वे, क्योंकि वो विद इन कैरेज वे के अंदर है, बीच में है, राइट? और एडजेसेंट टू द कैरेज वे मतलब कि क्या है, कर्व मार्किंग,
कैरेज वे के अगल बगल में जो कर्व होता है थोड़ा उठा हुआ, उसको भी हम मार्क कर देते हैं। ओके, वी विल सी क्या क्या है। तो जनरली क्या क्या होता है, लाइंस पैटर्न होता है, पैटर्न, जैसे ये जेब्रा क्रॉसिंग इज द पैटर्न, राइट, जेब्रा का जो है उसका पैटर्न है। वर्ड्स जो बोले थे स्लो, ये सब ठीक है। और अदर्स में आता है रिफ्लेक्टर्स, जो नाइट विजन के लिए जरूरी है, रिफ्लेक्टर्स। ओके, सो रिफ्लेक्टर इज ऑल्सो कम्स अंडर मार्किंग ओनली। ओके, ना पर्पज हम क्या बोले थे, टू गाइड एंड कंट्रोल द ट्रैफिक। सिंपल, ये तो पहले से हम बोले थे, तुमको गाइड भी करेगा। अगर तुमको बॉर्डर लाइन दे दिया है, मतलब क्या है, इतना में ही तुमको कैरी करना है व्हीकल को, उसके उस पार में क्या है, दैट इज द शोल्डर, दैट इज यूज्ड फॉर फुटपाथ या इमरजेंसी लेन्स, ठीक है। बट बॉर्डर लाइन के अंदर ही तुमको गाड़ी चलाना पड़ेगा। सो गाइड एंड कंट्रोल ट्रैफिक, ठीक है। ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर दे रहा है कि उतना में तुम्हारा कैरेज वे के अंदर ही चलाना पड़ेगा गाड़ी को। ओके, डिलिनिएशन मतलब तुम्हारा रास्ता तो स्ट्रेट नहीं रहता है, राइट, कभी कभी कर्व आता है, तो कर्व को भी जैसे 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 तुम्हारा कर्व आता है वैसे वैसे मार्किंग्स भी लीनिएट हो जाता है, राइट, डिलिनिएट हो जाता है। तो उसको ट्रैफिक पाथ शो करने के लिए भी नाइट विजन में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। दूर से तुमको अच्छा ट्रैफिक पाथ मिल जाता है। अगर वहां पे नाइट विजन में वो रिफ्लेक्टर्स लगा दिया तो क्या है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हेडलाइट तुमको पाथ दिख जाता है, ठीक है। तो ये सेफ पाथ दिखा रहा है तुमको, राइट। चैनलाइज मूवमेंट को चैनलाइज करने में भी हेल्पफुल है कि इसी से पेडिस्ट्रियन को जाना है, इसी से बस को जाना है, इसी से साइकिल को जाना है, राइट, और इसी से व्हीकल्स बाकी को जाना है। एंड ऑल्सो टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द रोड यूजर विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग, ठीक है। एक रास्ता है विदाउट मार्किंग, एक रास्ता है विथ मार्किंग। किसमें तुम्हारा स्मूथ लगेगा, किसमें यू विल फील कंफर्टेबल, ऑब्वियसली विद द, मतलब किसमें तुम फ्रीली गाड़ी चला पाओगे, ऑब्वियसली व्हेन योर तुम्हारा पेवमेंट इज विद द मार्किंग, ठीक है। लेकिन विदाउट मार्किंग में क्या हो जाता है, इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, रोड यूजर साइकोलॉजी, कि वो कैसे चलाएगा। अगर कोई एक रास्ता है जहाँ पे कोई मार्किंग नहीं, साइन बोर्ड नहीं है, तो एक हो सकता है कि हार्श ड्राइव करके चला जाए, पूरा उड़ के अपना जैसा स्पीड में वैसा ही, ठीक है। और एक होता है कि कॉशियसली चला सकता है, ठीक है, जैसे कि डर लगेगा, अच्छा हमको तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सामने क्या है नहीं है, सो यू विल ड्राइव कॉशियसली, ठीक है। तो दो केस हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रोड यूजर। कलर क्या क्या बोले थे हम, ब्लैक, व्हाइट इज द कॉमन, येलो भी यूज करते हैं। जनरली व्हाइट होता है, येलो क्या है, कहाँ पे देते, देखो ये है सिग्निफिकेंस। येलो का मतलब है नो ओवरटेकिंग जोन्स, ऑब्स्ट्रक्शंस टू अप्रोच, पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस, वहां पे येलो रहता है। जहां जहां लेन पे यू कैन नॉट, जहां जहां रास्ते पे यू कैन नॉट ओवरटेक, वहां पे येलो बीच में सेंटर लाइन में येलो बॉर्डर कर देते हैं, और सेंटर लाइन को पूरा एकदम सॉलिड कर देता है। सॉलिड लाइन मीन्स व्हाट, यू कैन नॉट क्रॉस दैट लाइन, एंड डैश डैश लाइन मीन्स व्हाट, यू कैन क्रॉस दैट लाइन। सेंट्रल लाइन में अगर तुम्हारा सॉलिड है, मतलब यू कैन नॉट चेंज योर लेन, मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते, उसी लेन को फॉलो करना है। अगर उसमें बीच बीच में डैश डैश है, गैप गैप करके जो रहता है, मतलब यू कैन ओवरटेक, मतलब यू कैन चेंज द लेन, ओके। और ब्लैक में होता है बेसिकली विथ अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट या ब्लैक एंड येलो, ये सब कर्व मार्किंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग्स में ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये सब हम टाइप्स बोल दिए हैं। नाउ अब ये सब है, देखो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मार्किंग। देखो ये क्या है, गैप गैप करके है ना, इट मींस व्हाट, यू कैन ओवरटेक। अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा ट्रक या लॉरी रहता है, तुमको जल्दी से जाना है, बट दैट लॉरी इज मूविंग एट अ स्लो स्पीड, तो देन व्हाट यू हैव टू डू, अगर ऐसा लाइन है, यू कैन चेंज दिस लेन, ओवरटेक करके फिर से अपने लेन में आ सकते हो, ठीक है। इफ इट इज सॉलिड, देखो यहाँ पे सॉलिड है प्लस येलो है, मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड है, एज वेल एज दिस इज नो ओवरटेकिंग, मतलब कि यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। इफ इट विल बी सॉलिड लाइन, यू कैन नॉट क्रॉस, मतलब जो लॉरी है उसको तुमको फॉलो करते करते जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, दिस इज सेंट्रल लाइन मार्किंग, ठीक है। बॉर्डर और एज लाइन ऐसा होता है, ठीक है। सिंगल बॉर्डर है और कहीं कहीं पे तुम्हारा देखो जैसे बॉर्डर कर दिया पूरा पाथ को, ठीक है। और कहीं कहीं पे तुम्हारा क्या है, डबल बॉर्डर भी रहता है, देखो दिस इज द डबल बॉर्डर। ये है हाईली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कि इट इंडिकेट्स मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन, यू नीड नॉट टू क्रॉस एक्सेप्ट इन इमरजेंट यूजेस। यहाँ पे बस स्टॉप है, मतलब यहाँ पे आके बस रुकेगा, इसीलिए ये जो भी व्हीकल्स आ रहा है, यू शुड नॉट क्रॉस दिस बॉर्डर लाइन, इट इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड रीजन, ठीक है। तो ये सब डबल लाइन दिया है, ओके।
अब देखो नो ओवरटेकिंग जोन, यहाँ पे स्कूल था इसीलिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि ओवरटेक करके नहीं जाना है, सबको स्लोली गाड़ी चलाना है, प्लस कोई ओवरटेक करके नहीं जाएगा, इसलिए स्कूल के सामने देखो ये इतना पोर्शन क्या कर दिया है, पूरा सॉलिड एज वेल एज येलो। ठीक है, देखो ये सब का ऐसा होता है। और कभी कभी तुमको दिखाई देगा कि एक साइड में डैश डैश है, एक साइड में सॉलिड है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन एनीवन? सपोज ये सेंट्रल लाइन है, दो सेंट्रल लाइन दे दिया है, एक में डैश डैश है, एक में सॉलिड है। बोलो तो इसका मीनिंग क्या है? सपोज ये वाला जो है तुम्हारा लेफ्ट वाला लेन में, ठीक है, डैश डैश करके सेंट्रल लाइन है, और राइट वाले के लिए पूरा सॉलिड है। अब बोलो कौन से लेन में ओवरटेकिंग रेस्ट्रिक्टेड है, लेफ्ट या राइट? This is right, so this is left, suppose. Anyone? Pulak? Hello? কি গো আছো? सौरभ कुमार बोलो तो। Matrinajan, Shyamashri, hello. Am I audible? Hello? Yes, ma'am. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ ম্যাম। তো রেসপন্স করছো না কেন? सपोज ये वाला है डैश डैश है, ये वाला सॉलिड है। ठीक है, ये जो है सॉलिड है, ये वाला डैश डैश है। राइट लेन के लिए तुम्हारा, सॉरी लेफ्ट लेन के लिए तुम्हारा डैश डैश है, ठीक है, और लेफ्ट लेन के लिए ये सॉलिड है। अब बोलो किस में ओवरटेकिंग नहीं कर पाएंगे, इस वाले में या इस वाले में? विच वन? ম্যাম রাইট লেনে করতে পারবো না। এটা सपोज राइट लेन, এটা सपोज लेफ्ट लेन, ठीक है। अब बोलो। मैम राइटे करते पारबो ना ओवरटेक। यस, मतलब इस तरफ से जो व्हीकल आएगा दे हैव व्हाट इज दैट, देयर इज नो ओवरटेकिंग रेस्ट्रिक्शन जोन फॉर दिस व्हीकल, ओके। और जो व्हीकल यहाँ से जा रहा है दे कैन चेंज देयर लेन, ओके। तो ये सब का भी मीनिंग ऐसा ही होता है, ओके। आई थिंक इट इज क्लियर। अब येलो का मतलब क्या है? येलो का मतलब है पूरा ही ओवरटेकिंग नहीं होगा, सॉलिड भी है येलो भी है, एकदम रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। अब आता है कि जैसे ये सब क्या आता है, दीज आर नाउ हैश्ड मार्किंग ऑन शार्प कर्व, जहां जहां पे कर्व होता है वहां पे जैसे ऐसा हैश मार्किंग दे देते हैं, ओके। जैसे ये वाला देखो, ठीक है। बट दिस इज व्हाट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट मार्किंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, कैरेज वे नहीं है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज विद इन द कैरेज वे और एडजेसेंट टू द कैरेज वे। ये ऑब्जेक्ट मार्किंग कौन किसके अंडर में आएगा, विद इन द कैरेज वे या एडजेसेंट टू द कैरेज वे में? ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? देखो रास्ते के बीचों बीच द कैरेज वे है, तो इसके लिए इसको भी मार्किंग कर दिया है, राइट। और रिफ्लेक्टर्स भी दे दिया है। मतलब क्या है, दीज आर द ऑब्जेक्ट मार्किंग्स। एक तो ऑब्जेक्ट है, ये सब है ऑब्जेक्ट, ठीक है। दीज आर नॉट द कैरेज वे, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मार्क कर रहे हैं, इसलिए दिस इज ऑब्जेक्ट मार्किंग, वेयर एज दीज आर विद इन द कैरेज वे, दैट्स व्हाई ये वाला क्या है, ऑब्जेक्ट मार्किंग विद इन द कैरेज वे, ओके। ये एक्चुअली दीज आर व्हाट, दीज आर द वार्निंग मार्किंग, ठीक है। वार्निंग भी दे सकता है कि कोई कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है यहाँ पे, इस तरफ में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस है, सो यू नीड टू बी कॉशियस, ओके। अब इंटरसेक्शन मार्किंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मार्किंग है, ये जो है ये वाला इंटरसेक्शन, ये वाई इंटरसेक्शन है, ओके। ये मार्किंग तुमको देखो डैश डैश दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से गाड़ी आएगा, इट कैन क्रॉस दिस लाइन एंड जॉइन दिस ट्रैफिक, ओके। सो इंटरसेक्शन मार्किंग एक एग्जांपल ये है। अब दूसरा है, देखो इंटरसेक्शन में ये सब आएगा, स्टॉप लाइन, एरो, ठीक है, ये जेब्रा क्रॉसिंग, ऑल दिस आर द इंटरसेक्शन मार्किंग। ये क्या है, डायरेक्शन एरो, ये सब भी मार्किंग्स ही है, ओके। और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ओके। These are the intersection marking, examples of intersections marking, okay. Markings in rotary, ये क्या है, this is a rotary, rotary मतलब
जो सेंट्रल आइलैंड जो होता है दैट इज कॉल्ड द रोटरी। छोटा सा अगर होगा डायमीटर रोटरी, बड़ा सा होगा तो राउंड अबाउट या रोटरी बोलते हैं। ओके, उसको भी यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। ओके, नाउ दिस आर द स्पीड ब्रेकर्स। इसमें भी मार्किंग्स और रिफ्लेक्टर्स लगा दिया है सो दैट इन नाइट के लिए पता चले कि अच्छा वहां पे स्पीड ब्रेकर है। रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो पता चलेगा अच्छा वहां पे सामने स्पीड ब्रेकर है। ओके, और ये सब है तुम्हारा पार्किंग मार्किंग जो बोल देते हैं हम, मार्किंग्स फॉर पार्किंग। साइकिल पार्किंग्स है, गार्ड पार्किंग्स है, ठीक है। ये बस लेन मार्किंग है, अब बस यहीं पे रहकर रुकेगा, ठीक है, बस लेन है। ओके, वर्ड मैसेज जो बोले थे हम, वर्ड इंफॉर्मेशन टू गाइड वार्न एंड रेगुलर ट्रैफिक, स्लो डाउन, ठीक है। गिव वे हम बताएंगे कि क्या है एक्चुअली गिव वे। ओके, गिव वे का मतलब है तुम रास्ता दो, उस तरफ से जो भी व्हीकल्स आएगा, क्रॉस डायरेक्शन से जो भी व्हीकल्स आएगा पहले उनको जाने दो, देन यू कैन मूव। ओके, दैट इज मतलब कि तुमको रास्ता देना है, छोड़ना है, राइट। चेकबोर्ड मार्किंग्स ये सब भी है, ऑल दिस अदर मार्किंग्स ओनली। ये जो है एवरीथिंग कम्स अंडर मार्किंग्स ओनली। ओके, एवरीथिंग। साइड वॉक्स के लिए देखो सेपरेट कर दिया है, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है। ट्रैफिक आइलैंड, मीडियन, चैनलाइजर, साइन बोर्ड जो होता है, साइन बोर्ड इट इज स्टैंडिंग ऑन अ एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक स्टिक के ऊपर स्टैंड करते हैं ना, रॉड के ऊपर, तो देखना रॉड को भी मार्किंग किया जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाट, दैट इज ऑब्जेक्ट ओनली, दैट इज नॉट द कैरेज वे। वो ऑब्जेक्ट है, साइन बोर्ड का जो स्टिक है वो दैट इज ऑब्जेक्ट ओनली, एंड दिस इज एडजेसेंट टू द कैरेज वे, सो इट कम्स अंडर ऑब्जेक्ट मार्किंग एडजेसेंट टू द कैरेज वे। ओके, या जो भी कलवर्ट पोल्स जो होगा सबको भी मार्किंग्स किया जाता है। जैसे ये वाला देखो, ये जो है यहाँ पे बेस इसका जो है उसको भी तुम्हारा व्हाइट से मार्किंग कर दिया। ये जो स्टिक्स है उसका जो रॉड है उसको भी मार्किंग कर दिया है, ठीक है। ये जो मार्किंग्स, ऑल दीज आर द मार्किंग्स ओनली। यहाँ पे अंडर प्रोसेस है, वर्किंग अंडर प्रोसेस, तो इसको मार्क रेड कलर से मार्क कर दिया। रिफ्लेक्टर, रात को ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। दीज आर द विद इन कैरेज वे, ये जो बोले थे मीडियन, these are the markings, okay, within the carriageway। अब आते हैं adjacent to the carriageway, बोला कितना है, all objects located within 1.5 meter beyond the formation width of the road shall be painted। मतलब 1.5 मीटर के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट आता है सबको पेंट कर देना है, उसकी उस तरफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन विद इन दैट 1.5 मीटर में आएगा तो पेंट कर देना है। ओके, जैसे पोल्स को बोला, देखो इट शुड बी मार्क्ड विद अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स अप टू 1.25 मीटर अबव द रोड लेवल, ठीक है। जितना भी पोल्स रहेगा उसको एटलीस्ट 1.25 मीटर ऊपर तक मार्किंग कर देना है, ठीक है। द अदर ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट, गार्ड रेल्स, ड्रम, ट्रीज को भी कभी कभी कर देता है अगर बहुत पास में होता है, विद इन 1.5 के इसमें अंदर रहता है। ओके, देखो ये सब क्या है, गार्ड रेल्स है, गार्ड रेल्स को भी पूरा 1.25 के अंदर मार्क कर दिया है। देखो ये पोल है, इसको भी 1.25 मीटर के अंदर मार्क कर दिया है। ये जो देखो यहाँ पे है जो कर्व, ये सबको भी मार्क कर दिया है, व्हाइट बॉक्स, एवरीथिंग हैज बीन मार्क। ये जो रास्ते के 1.5 मीटर के अंदर में आएगा सबको, ये जो पोल है इसको भी मार्क कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट अल्टरनेटिव जो बोले थे, ठीक है। कर्व मार्किंग, ये जो बोलते हैं इसको कर्व, दैट इज ऑल्सो एडजेसेंट टू द, ये सब है एडजेसेंट टू द कैरेज वे एंड दिस आर द विद इन द कैरेज वे, ठीक है। ये सब कर्व्स देखो, ये सब स्पीड ब्रेकर्स, चेकबोर्ड मार्किंग्स, सो दिस आर द डिफरेंट। ये जो मूवेबल बैरिकेड इसको भी मार्किंग के अंदर में हम लोग लेंगे, ठीक है। इसको इधर व्हाइट, ब्लू, इससे येलो, इससे हम लोग का मार्केट कर देता है, राइट। देखो रास्ता को, मतलब आसपास में जो भी तुम्हारा ट्रीज है, ठीक है, उसको भी ऐसे वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कुछ काम चल रहा है वहां पे तो ऐसे करके मार्क कर देना पड़ता है, विद इन द मतलब अबाउट 1.5 मीटर के अंदर में अगर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन बोर्ड भी है, प्लस रिफ्लेक्टर का मार्किंग भी है, एवरीथिंग, जिससे ये कंट्रोल हो सके, पता चले कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तुमको सावधान से चलाना है। कॉशन बोल रहे थे हम, कॉशन वार्निंग कर रहा है, तो इसलिए ट्रायंगुलर शेप का है, देखो साइन बोर्ड। स्लो डाउन, ओके, वर्क इन प्रोग्रेस, स्लो डाउन। अब रिफ्लेक्टर, ये भी मार्किंग्स में ही आता है, ओके, रिफ्लेक्टर यूनिट मार्किंग। नाउ कम्स योर साइन।
साइंस का मेनली हम बोले थे क्या क्या होता है, एक होता है कि तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, ओके, मैंडेटरी है करने के लिए, वो सब साइन बोर्ड का रूल्स जो भी वहां पे देता है मैसेज, यू हैव टू फॉलो दैट, दैट इज कॉल्ड द मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस। प्लीज रिमेंबर मैंडेटरी एंड रेगुलेटरी बोथ आर सेम, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कोई एक एग्जांपल दो रेगुलेटरी व मैंडेटरी का, ठीक है। और cautionary and warnings, this sign will give us warn us about the future hazard condition, hazard situation, okay, caution करेगा हमको, warning देगा, okay, and informatory और guide sign और directional sign जिसको बोलते हैं, जो तुम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में देखा था, जैसे ऊपर में हाईवेज के ऊपर में ग्रीन कलर का एक रेक्टेंगुलर बोर्ड रहता है, सो दोज आर द इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड, तुमको इंफॉर्मेशन देता है, ओके। एक एग्जांपल दो तो मैंडेटरी साइन बोर्ड का एग्जांपल, एनीवन, जो तुम लोगों ने देखा होगा कि तुमको फॉलो ही करना ही है वो वाला, ऐसा मैंडेटरी का एक एग्जांपल दो। अभी तो थोड़ी देर पहले तो हम एग्जांपल भी बोले थे। देखो एक हम साइन बोर्ड दिए है स्कूल अहेड वाला, ठीक है, एक तुम्हारा जो ग्रीन कलर का बोर्ड में रहता है इंफॉर्मेशन वाला, वो वाला एक साइन बोर्ड दिया है, ठीक है, और एक तुमको स्टॉप साइन बोर्ड दिया है। अब बोलो इनमें से विच वन इज मैंडेटरी, स्कूल अहेड या स्पीड ब्रेकर अहेड वो मैंडेटरी है, या स्टॉप साइन बोर्ड वो मैंडेटरी है, या जो इंफॉर्मेटरी बोर्ड है डायरेक्शन शो करने का हाईवेज के ऊपर वो मैंडेटरी है? Which one is mandatory? क्या लग रहा है? स्टॉप। स्टॉप मतलब तुमको रोकना ही पड़ेगा, सामने कुछ है, ऑब्स्ट्रक्शन है, यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल, मैंडेटरी टू डू दैट, ओके। कॉशनरी मतलब क्या है कि तुमको बोलेगा थोड़ा आराम से चलाओ, राइट, सामने कुछ आने वाला है, प्लीज बी कॉशियस, ओके। और इंफॉर्मेटरी का मतलब है कि ये इट्स नॉट नेसेसरी कि तुमको वो फॉलो करना ही है, तुम हो सकता है तुमको जाना है कुछ जगह, ठीक है, लेकिन वहां पे दूसरा साइन बोर्ड दे दिया है कि जैसे हॉस्पिटल पास में है वैसा वाला साइन बोर्ड, ठीक है, मतलब तुम जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते, जिसको जाना है वो ही जाएगा, दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू, ओके। तो यही है डिफरेंस बिटवीन मैंडेटरी, कॉशनरी एंड इंफॉर्मेटरी। अब जाते हैं हम लोग साइन बोर्ड के अंदर, ओके। तो पहले आते हैं सपोज कॉशनरी एंड वार्निंग। तो ये क्या होता है, बेसिकली इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, देखो ये है ट्रायंगुलर इन शेप विथ रेड बॉर्डर एंड ब्लैक सिंबल इन दी व्हाइट बैकग्राउंड, या कभी कभी येलो कलर का भी होता है, वार्निंग जो बोले ना, वार्निंग सिग्नल जो बोलते हैं वैसे येलो का भी होता है कभी कभी, ठीक है। सो ऐसा होता है, देखो ट्रायंगुलर इन शेप, रेड बॉर्डर, ब्लैक सिंबल विथ व्हाइट बैकग्राउंड, ठीक है, या ये सा भी होता है व्हाइट के जगह पर येलो बैकग्राउंड। तो दीज आर योर कॉशनरी, ठीक है, जैसे वी आर यहाँ पे जैसे ये बोला है कि थोड़ी देर बाद आओ, मतलब वर्किंग प्रोग्रेस, ओके। तो ये वाला क्या बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दिस पर्सन, ओके। तो ये दीज आर द एग्जांपल, देखो सामने तुम लेफ्ट टर्न ले सकते हो, टर्निंग ऐसा है, ठीक है। ये वाला क्या है, यहाँ पे ब्रिज का साइन दे दिया है, ये वाला क्या है, ये वाला विथ क्या हो जाएगा, रास्ता का विथ पहले इतना था अभी कम हो गया, जैसे चढ़ियाल में आते होते वक्त देखना तुम लोग का ऐसा भी एक साइन बोर्ड दिखाई देगा, अभी पता नहीं पहले था ऐसा वाला कि ये वाला लेन 2 लेन से 1 लेन में कम हो जा रहा है, ओके। जैसे कि सामने से ये स्कूल अहेड है, ये वर्क इन प्रोग्रेस सिग्नल है, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट, दिस आर द वार्निंग। जैसे ये वाला है, देखो सामने, मतलब ये वाला साइन बोर्ड तुमको दिखेगा, अभी देखना कहाँ पे है, जिस देखो ये पेडेस्ट्रियन हुआ, स्पीड ब्रेकर है, देखो ये वाला, मतलब कि ये वाला इलाका जो भी है इट इज योर, यहाँ पे हिरन है, बहुत सारा डियर है, तो डियर तो रास्ता क्रॉस कर ही सकता है, राइट। सो वी हैव टू स्लो डाउन आवर व्हीकल, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, इंफॉर्मेशन क्या कॉशन कर रहा है हमको, ये जो गो स्लो ट्रायंगुलर के अंदर ही है, ओके। दूसरा क्या है, मैंडेटरी, ओके, यूज टू इंडिकेट द प्रोहिबिशन, कभी कभी बोलता है कि यहाँ पे नो एंट्री, यहाँ पे नो पार्किंग, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द मैंडेटरी, राइट, या तुमको यहीं से जाना है, राइट, ऐसा वाला, ठीक है। सो पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस, व्हीकल स्पीड, राइट, व्हीकल कितना कैरी लोड कैरी कर सकता है उसका लिमिट, सो ऑल दिस कम्स अंडर द मैंडेटरी साइन बोर्ड। जनरली क्या होता है, दीज आर सर्कुलर इन शेप
अपार्ट फ्रॉम जनरली सब साइन बोर्ड अगर सर्कुलर होता है वो क्या है, मैंडेटरी टाइप में आता है, लेकिन उसके अंदर भी दो टाइप का सिग्नल है, साइन बोर्ड है विच इज नॉट सर्कुलर इन शेप। कौन सा है? एक है स्टॉप साइन का क्या है, ऑक्टागोनल है, और एक है गिव वे, जो अभी हम बोले गिव वे, रास्ता देने वाला साइन। ठीक है, मतलब दो रास्ता है, एक मेजर रोड है, माइनर रोड है। तो माइनर रोड से तुम जा रहे हो, ठीक है, मेजर रोड से कोई और आ रहा है, तो माइनर रोड मतलब क्या है, वहां पे लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा, मेजर रोड मतलब हाई स्पीड से आएगा, मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स आएगा, राइट। तो जो मेजर रोड से आता है उसको प्रायोरिटी देना है, मतलब उसको रास्ता पहले क्रॉस करने देना है, फिर जाके जो माइनर रोड से आ रहा है वो क्रॉस कर सकता है। ओके, सो ये जो गिव वे साइन कहाँ पे आएगा, माइनर में आना चाहिए ना मेजर में? गिव वे साइन किसको देना चाहिए, जो माइनर रोड से आ रहा है या मेजर रोड से? गिव वे साइन किसको देना चाहिए? एंड इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। देखो वो वाला ट्रायंगुलर था, ये वाला लेकिन उल्टा ट्रायंगुलर होगा। ओके, जैसे ये हो गया स्टॉप, गिव वे, ये जो प्रोहिबिशन, नो एंड, ये जैसा वाला। ठीक है, सो ऑल दिस आर द मैंडेटरी एग्जांपल्स। तो ये सब है तुम्हारा, देखो सबका ही है, सर्कुलर है बेसिकली, बट ये दोनों इसका और गिव वे का जो दिया था यहाँ पे, देखो गिव वे का ऐसा है, उल्टा उल्टा ट्रायंगल। ठीक है, उसको दोनों को छोड़कर बाकी सब तुम्हारा सर्कुलर ही है। ठीक है, तो these आर योर प्रोहिबिटरी। ये जो है ऐसा 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 मतलब क्या है, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटरी। ओके, ये क्या एंट्री नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सब प्रोहिबिटरी। देखो गिव वे, ये माइनर रोड है, ये मेजर रोड है। ठीक है, इसका गिव वे दिया है माइनर रोड में, मतलब क्या, ये दोनों व्हीकल क्रॉस किया तभी ये गैप देकर क्रॉस कर पाया। So he is giving way to the major road. Okay, this is the minor road, this is the major road. Okay, अब यहाँ पे भी देखो गिव वे है, अब ये रोटरी है, देखो ये वाला जो है इसका रोटरी का साइन है, गिव वे एंड रोटरी। ओके, ये है स्टॉप, मतलब देखो इसको, इस वाले रास्ते पर स्टॉप है, मतलब तुमको रुकना है, इन लोग को जाने देना है, देन यू कैन मूव। ओके, अब ये देखो इसमें ये प्रोहिबिशन है, ये वाला है मैंडेटरी, तुम इस तरफ टर्न नहीं ले सकते। ठीक है, और गिव वे है, ये वाला भी तुम्हारा मैंडेटरी है कि तुमको देना ही है, दोनों ही मैंडेटरी यहाँ पे है। ठीक है, एंड दिस आर नाउ कंपल्सरी, ये भी तुम्हारा आता है रेगुलेटरी में। कंपल्सरी मतलब करना ही है तुमको। लेफ्ट यहाँ पे देखो ये कीप राइट, मतलब तुमको जब ट्रेवल करोगे तो ऐसा साइन बोर्ड आएगा, मतलब क्या है, तुमको राइट की तरफ ही जाना है। ठीक है, ऐसा साइन बोर्ड आएगा मतलब क्या, तुमको लेफ्ट की तरफ ही टर्न वो करना है, राइट। सो दिस आर द कंपल्सरी, और इनका कलर ऐसा होता है, जैसे ये वाला देखो कीप लेफ्ट, बस ये भी एक काइंड ऑफ कंपल्सरी है। ठीक है, जैसे ये वाला क्यों, कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस था या कुछ कंस्ट्रक्शंस या कुछ भी हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, अब डायरेक्ट यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो इसको इस तरफ में जाके करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट में जाके, राइट। इसीलिए ये क्या है, कीप राइट डायरेक्शन साइन है ये वाला। ठीक है, कंपल्सरी। इसके ये वाला तो एक लेन है, यहाँ तक तो लेन से आ रहा है, लेकिन अब इसको लेफ्ट में टर्न करके जाना है, राइट। दिस इज द कंपल्सरी एंड दिस आर व्हाट, ऑपरेशनल। एज आई सेड, तुमको 35 किलोमीटर में ही जाना है, 30 में ही जाना है, 20 में ही जाना है। सो दिस आर व्हाट, मैंडेटरी बट ऑपरेशनल कंट्रोल। सो मैंडेटरी के अंदर ऑपरेशनल कंट्रोल या स्पीड कंट्रोल जिसको बोलते हैं, स्पीड कंट्रोल इज एन एग्जांपल ऑफ मैंडेटरी। ओके, नाउ कम्स इंफॉर्मेटरी, ये है सब इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है, अबाउट द लोकेशन, डायरेक्शन टू द फैसिलिटीज, मतलब हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट या कोई तुम्हारा क्या बोलते हैं, पंप स्टेशन कहाँ पे है। ओके, डिस्टेंसेस विद एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, जनरली रेक्टेंगुलर होता है, ये वाला ब्लू या ग्रीन में होता है। ओके, एंड दीज आर आल्सो द इंफॉर्मेशंस की, जैसे रेस्टोरेंट है पास में, राइट, या तुम्हारा पार्किंग अवेलेबल है, यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो, या मोटरसाइकिल पार्किंग है, कार्स पार्किंग है, ये सब है। So these are what? These are your mandate information, informatory, या डायरेक्शन भी दे रहा है तो डायरेक्शनल भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन भी दे रहा है या गाइड भी कर रहा है हमको। ओके, सो दिस आर योर गाइड साइंस, जैसे ये सब है, ये सब। ठीक है, एग्जिट, इस तरफ एग्जिट है, ये दिया। अब ये वाला देखो, ये वाला क्या कर दिया है, देखो ये पार्किंग यहाँ पे है, कार का, साइकिल, बाइसाइकिल का पार्किंग यहाँ पे होगा। सो ऑल दिस आर द इंफॉर्मेटरी। अदर इंफॉर्मेटरी ऐसा भी होता है, ये जो मैप वैप दिया रहता है ना कभी कभी, दोज आर आल्सो द इंफॉर्मेटरी, मतलब अबाउट द लोकेशन, जहाँ पे तुमको उस लोकेशन का इंफॉर्मेशन भी है।
ठीक है. So all these are the informatory signboard. I think this is clear. साइन बोर्ड बेसिकली कितना टाइप का होता है? बोलो, साइन बोर्ड कितना टाइप का होता है? Ma'am, 3 types. What are those? Mandatory, informatory, and मैम Directional. cautionary. Cautionary. Okay. Now let me ask anyone in this मतलब जो present है, suppose कौन है यहाँ पे? प्रिनांजन. प्रिनांजन आछो तो चलेगा. स्टॉप साइन का किसर बोलो? स्टॉप साइन मैंडेटरी, कॉशनरी या इंफॉर्मेटरी? एनीवन? स्टॉप साइन का की वार्निंग, मैंडेटरी. यस, तुमको रोकना ही है, राइट. अच्छा, नो हॉर्न जो होता है ना, कभी कभी पर हॉर्न का सिंबल होता है और ऐसा स्लाइस दिया होता है, मतलब नो हॉर्न, वो क्या है? मैंडेटरी है. मैम मैंडेटरी तो हाँ मैंडेटरी, बट क्या है? प्रोहिबिटरी. वहां पे नो करना नहीं है, नहीं बजाना है, नो करना है, राइट. सो प्रोहिबिट करना है. ओके. तुम्हारा सिग्नल क्या बोलते हैं? स्पीड लिमिट जो देता है वो क्या है? कॉशनरी. स्पीड लिमिट मतलब तुमको रेगुलेशन मैंडेटरी, ওটা না করলে তো ফাইন হয়ে যাবে. हाँ मैंडेटरी ऑपरेशनल साइन है वो, ठीक है. मैंडेटरी ऑपरेशनल साइन. ओके. अच्छा, अगर बोलेंगे कि हम इंटरसेक्शन अहेड, ऐसा कुछ साइन बोर्ड आएगा, ठीक है. पहले बोलो वो क्या साइन बोर्ड है? मैंडेटरी है, कॉशनरी है कि इंफॉर्मेशन है? मैम এটা कॉशनरी. इंफॉर्मेशन नहीं है मैम कॉशनरी इंटरसेक्शन. हाँ कॉशनरी की तुम्हारा सामने सपोज स्पीड ब्रेकर है, कॉशनरी देता है. ओके. नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉशनरी साइन बोर्ड? इन जनरल क्या होता है कॉशनरी साइन बोर्ड का शेप? सर्कुलर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल? वार्निंग साइन बोर्ड का शेप कैसा? ट्रायंगल. ओके. हाँ. और जो कॉशनरी मैंडेटरी जो होता है मेनली इट विल बी सर्कुलर, बट अपार्ट फ्रॉम सर्कुलर वहां पे दो और तुम्हारा साइन बोर्ड है, जैसे स्टॉप साइन है और गिव वे साइन है, ठीक है. दोज आर मैंडेटरी ओनली, बट उनका शेप सर्कुलर नहीं होता है. स्टॉप का क्या शेप होता है? ऑक्टागोनल. यस, ऑक्टागोनल. और गिव वे का इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है. आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है. तो ऐसा ही तुम लोग का एमसीक्यूज आ सकता है. नाउ अब दूसरा लेक्चर जाने से पहले बोलो, सेल आई कंटिन्यू और थोड़ा ब्रेक देकर फिर ज्वाइन करोगे? हेलो ম্যাম একটু ব্রেক দিন 5 মিনিটের. ওকে, তাহলে আমি এটা